Hello everyone, this is me, your fitness girl Abigail. So it's not gonna be like other my other videos. So it's gonna be, I'm going to share an experience of my life that was like, it's difficult to explain that feeling, explain that experience I have experienced. Well, look, I don't want to mention any place over here. It's and because of some privacy reason, I'm not gonna mention that place name. But whoever lives in my city, they can guess the place name easily. Okay, so look, different people have different kind of opinion, different kind of mentality, different kind of thoughts, different kind of ideology. Many people maybe have no faith on God or no faith on angels. Well, I believe in spirits. I'm a very spiritual person. I believe in God. At the same time, I also believe in evil powers and evil spirits. So I grew up, doing worship at my home, and I'm a huge, like a very spiritual person, and I have a huge faith on my God. So some of you might think that I'm lying or it's not a believable experience, so you can just stop watching this video. But I'm just going to share whatever I felt. So I'm not going to mention any place name for the privacy reason, but those whoever live in my city, so they can just easily identify the place where I'm talking about. So it was 2016, if I'm not wrong. Yes, it might be 2016. So I was a very that kind of person at that time, that I don't believe in, like, I believe in God, but that at that time of point I have no faith on like evil powers. I don't believe on that, like spirits and ghosts, on these things, kind of things. I'm not that kind of girl at that time of point. So I have participated in a tournament, and that was held on our city stadium, that is called as Rajwadi Stadium. So there were many participants, but not that much of participants. So everyone was on the stadium. It was sitting there. और जो gallery था, like those galleries over there, and each gallery has a different staircase, and under this staircase there is a green room. तो फिर मैं खेल रही थी, तो I was like about to win the match, but somehow I got could not own that game, and I got third position. And I think I played well, but my strategy didn't work out. So फिर मैं थोड़ा अपसेट हो गई थी कि लाइक क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, एंड एज अ प्लेयर आई फेल्ट रियली बैड. क्योंकि आप ऐसा होता है कि आप लोग आप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हो गेम खेलने, फिर जब आप जीता हुआ मतलब जब जीत नहीं पाते हो, तो फिर आपका थर्ड पोजीशन मिलता है, फिर आप बहुत बुरा लगता है. तो फिर मैं ऐसे थोड़ा बुरा फील हो रहा था, तो मैं ऐसे नीचे बैठी थी. तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि सब बच्चे खेल रहे थे, पेरेंट्स जीत रहे थे, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था. सबके लिए खुश थी, बट अपने लिए बुरा लग रहा था. तो फिर मैं ऊपर चले गई गैलरी. अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे लाइक गैलरी में बहुत सारे लोग होते हैं. पूरे गैलरी में, नीचे वाले पोर्शन में, पूरे गैलरी में लाइक लोग मैच देखते थे. बट at that tournament there were nobody on the gallery. So सब नीचे ऐसे बैठे थे. सब नीचे प्लेयर गेम चल रहा था, मैच हो रहा था. तो फिर मुझे बुरा लगा, तो मैं ऐसे फिर चल के मैं गैलरी में चली गई. तो मैं जिस साइड पे बैठी थी उस साइड पे कोई नहीं था. सामने वाले गैलरी पे लाइक एक दो इंसान थे, मुझे दिख रहा था बहुत दूर से, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि बीच में वो स्टेडियम वाला था, ऐसे राउंड शेप में था. तो वो मैं ऊपर बैठी थी, एंड
मैं ऐसे थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो गई थी इस चीज़ को लेके। अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, तब उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, किसी भी चीज़ को मैं ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। मुझे बुरा लग रहा था, मैं ऐसे लाइक अपने गार्ड्स वगैरह उतार के ऐसे बैठी हुई थी। मैंने गार्ड्स वगैरह नीचे खोल के आ गई थी, मैं ऐसे तो बैठी हुई थी अपनी वैसे मुझे पैर पे बहुत ज़ोर का लगा था, तो हाँ अभी याद आया मुझे, पैर पे ज़ोर का बहुत ज़ोर से लगा था, क्योंकि जो मैंने किक किया था तो वो उसके एल्बो पे लाइक इस साइड पे क्या कहते हैं इसे, आई डोंट नो, कूनी या एल्बो जॉइंट पे ऐसे लगा था। फिर मेरे फीट पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया था तुरंत, मतलब इंस्टेंट वो स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर मैं ऐसे स्प्रे वगैरह लगा के ऊपर चढ़ के वैसे बैठी थी, मुझे थोड़ा इमोशनल थी, इस पर दर्द भी हो रहा था। सडनली मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है कि ना, मैंने ऐसा सुना था कि मतलब पहले मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता है कि अगर आसपास लाइक कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होता है ना, तो उस पर्टिकुलर एरिया की ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो वही हुआ इस टाइम पे। तो मुझे इसमें से ज़्यादा ठंड क्यों हो रही, लाइक बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और वो शायद लाइक अगस्त का महीना था, तो अगस्त में इतना ज़्यादा ठंड होना इट्स लाइक वेरी वियर्ड। अचानक टेम्परेचर गिर जाना नीचे। फिर सुबह मैंने ऐसे भाव नहीं दिया, तो फिर मैं ऐसे बैठी हो रही थी, मतलब इमोशनल हो गई थी। मैं दूसरों का मैच देख रही थी, ऊपर से अच्छा दिख रहा था तो मैं देख रही थी, थोड़ा बुरा भी लग रहा था, अपसेट थी। और क्या होता है ना, जब आप अंदर से बहुत नेगेटिव होते हो, बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, लाइक इसलिए कहते हैं ना लोग हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडेड रहो। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो, लाइक आपको भगवान पे भरोसा नहीं होता, आप गुस्सा करते हो, आप रोते हो, आप चिल्लाते हो, अंदर से लाइक टूट जाते हो ना, तब नेगेटिव एनर्जीज, इविल एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करने लगते हैं। और शायद यही हुआ उस पर, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसे सुना सुन चुकी थी, हमारे यहाँ पे जो पैलेस है उसके अंदर बहुत साल पहले इतने सारे लोग मरे हैं, इतने सारे लोग लाइक कुछ हुआ है, तो उसकी स्पिरिट ना अभी भी वहाँ पे लाइक है। वो राजबाड़ी के अंदर, स्टेडियम के अंदर है, ये मुझे नहीं पता था। अपने राजबाड़ी के अंदर वो बहुत कम लोगों को दिखता है, मतलब जो लोग रात पर वहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों से मैंने सुना था कि हाँ ऐसा वैसा होता है, ऐसा स्पिरिट्स है वहाँ पे। तो तब कौन इस एज पे इन सब चीज़ों को भाव देता है, तो मैं भी ऐसे नहीं थे, तो मुझे ऐसा फील तक नहीं हुआ कि लाइक कुछ है यहाँ वहाँ पे। मैं बैठी थी, सडनली ऐसे लगा कि आसपास कोई है। आई फील्ड दैट। फिर मुझे ना ऐसा अचानक, क्योंकि वो गैलरी पूरा खाली था, वो ऐसा लाइक सुनसान जैसा लग रहा था कुछ टाइम के लिए, तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया वो जगह। मतलब अचानक से कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे अंदर से, लाइक एक होता है ना आपका पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे ना, ऐसा लग रहा था, मेरा हार्ट भी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैं ऐसे नीचे, मतलब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए शायद। तो मैं ऐसे नीचे आ रही थी। अब जो हुआ भाई साहब, वो तो सोच ही नहीं सकते। मेरे रोंगटे, मैंने लाइट्स बंद करके रखे, फ्लैश लाइट से मैं वीडियो बना रही हूँ। सो उस वक्त क्या हुआ, मैं ऐसे स्टेयर से नीचे आ रही थी, एंड सडनली मैंने देखा मेरे राइट साइड पे जो था स्टेयरकेस के नीचे, जो मतलब गैलरी के नीचे जो गेंद रूम होता है, वो उसके जो दरवाज़ा है ना, जो ऐसे कहते हैं ना कुंडी लगाता है ऐसे, क्योंकि वो कुंडी लगी हुई थी। मैं नीचे आ रही थी, लग रहा है पता नहीं। तो वो दरवाज़ा ना पहले ऐसे किसी ने बैंग किया ज़ोर से, लेके ऐसे थपथपाया, टैप पैट पैट किया। तो मैंने लगा कि अंदर कोई है। मैंने पूछा कि कोई अंदर है, अंदर कोई बंद है क्या, अंदर कोई। मैं सब बंगाली में बोल रही थी कि क्यों के भीतर आछे, क्यों आछे भीतरे, हेलो क्यों। वो दरवाज़ा उसके बाद जिस तरह से बैंग हुआ, वो लिटरली ऐसे 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 हो रहा था, पूरा दरवाज़ा हिलने लगा। वो कुंडी ना ऐसे ऐसे, वो कुंडी काफ़ी टाइट होता है, लाइक आप जब लगा देते हो ना वो कुंडी काफ़ी टाइट हो जाता है। वो लिटरली ऐसे ऐसे दरवाजे पे थप 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 हो रहा था। मेरे को लगा भाई साहब, मैं इतना ज़ोर से चिल्लाई, ये लाइक कौन है अंदर, कौन। अगर कोई अंदर बंदा बंद होता या फिर कुछ कोई एनिमल भी होता, क्योंकि एनिमल के पास इतना ज़्यादा पावर नहीं कि वो इतना दरवाज़ा, लाइक अंदर कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी बंद हो जाता है, तो इतना बड़ा दरवाज़ा कैसे लाइक हिल सकता है। और इंसान होता तो वो जवाब देता ना मुझे कुछ, हाँ मैं अंदर हूँ, प्लीज़ कोई आके दरवाज़ा खोल दो प्लीज़। मैं इतना ज़ोर से चीख रही थी, कोई आवाज़ नहीं आ रहा था अंदर से, बस वो दरवाज़ा भयानक तरीके से वो बैंग होने लगा। एंड आई एम लाइक शिट 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 शिट। मैं दौड़ती भागती गिरती, मैं गिर गई थी, मतलब मेरे को ऐसा चकमा लगा, मैं ऐसे पीछे होकर मैं ऐसे गिर गई,
और मुझे तो बैठ गई, बस सांसें नहीं लगी। मेरी दादी मेरे साथ थी, तो दादी मेरे पहले दादी मतलब मेरे हर टूर्नामेंट में वो जाती थी, मतलब हर टूर्नामेंट में उनको जाना ही है, तो मेरा मैच देखना उनको देखना ही है, मेरा सिर्फ नहीं बाकी को मैच देखने जाना ही था उनको खेल कूद का लाइक बहुत शौक है। फिर मैं आके बैठी तो मैंने ऐसे मेरी दादी के हाथ में ऐसा हाथ रखा, तो मैंने कहा कि तेरा हाथ अचानक इतना ठंडा क्यों पड़ गया? कि कुछ नहीं है, आप घर चलो फिर बता दो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तब थोड़ा होता अपसेट थे इसलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं घर चलो फिर बात करते हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे लगा कि अगर मैं किसी को बताऊँगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा मुझ पर, मतलब कौन ही विश्वास करेगा, क्योंकि ये इंसिडेंट सिर्फ मैंने देखा, आज सिर्फ मैंने वो चीज़ देखी थी और कोई आसपास नहीं था, कौन मुझे भरोसा करेगा। और जब बात आती है ना ऐसा स्पिरिट्स वगैरह पे, लोग भरोसा ही नहीं करते इन सब चीज़ों को, लगता है कि मजाक है, इल्यूशन है एंड वहम है, हेलुसिनेट कर रहे हैं लोग। ऐसा बात नहीं है, मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो आप इमेजिन नहीं कर पाते, जब होती है वो दुनिया में, आपको सबको दिखा थोड़ी ना देता है वो। बट जो चीज़ मेरे साथ हुई, मैं उसको अभी तक लगे भुला नहीं पाती हूँ। इतना गंदा वाला, मतलब मेरे उसके बाद मैं किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है कि कोई विश्वास नहीं करता। तो उसके बाद कुछ साल बाद मैंने अपने एक दो फ्रेंड को बताया कि क्यों नो स्टेडियम में ऐसे ऐसे है, तो वो लोग भी विश्वास नहीं, फिर मैं किसी को बताती। फिर मुझे एक दोस्त मिला जो मतलब मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उनको बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको भी लाइक विश्वास है इन सब चीज़ों पर, लाइक हम सब लाइक वो भी इन सब चीज़ों पे भरोसा करती है। उसको पता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है उसके बारे में। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा होता है, जब आप खुद नेगेटिव रहते हो, अंदर से टूट जाते हो, बुरा फील करते हो, लोनली फील करते हो, इसलिए करते हैं ना डिप्रेस्ड मत होना लाइफ में, कुछ भी हो जाए। डिप्रेशन ये सब चीज़ें ना बहुत गंदी होती है, लाइक हाँ लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बट उस फेज़ को आपको उस फेज़ से निकलना है, आपको मतलब सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, एक दोस्त एक इंसान तो रहेगा ना जो आपसे सच्चा प्यार करेगा। वो इंसान एक ऐसा दोस्त, ऐसा इंसान, ऐसा कोई मेंटोर एटलीस्ट तो रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जिससे आप बात कर सकते हो, चीज़ें क्लियर कर सकते हो। लेकिन डिप्रेशन ये सारी चीज़ें लोगों को अंदर से खा जाती है और फिर ये सारी नेगेटिव एनर्जी सब पे अट्रैक्ट करती है। आज यहाँ पे बैठे हो, मेरे तरफ स्पिरिट्स है, बट क्या है कि वो आपको वो फील करा नहीं रहा कि सॉरी मेरी ही शैडो थी मैटर की। पता नहीं फिल्मों में कैसे लोगों को मतलब इतना ज़्यादा मतलब अंदर से लाइक करता है कि जाके देखो, इतना हिम्मत कैसे आती है। मेरा तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं उस जाके वो कुंडी खोलूँ, मतलब इतने ज़ोर से वो दरवाज़ा, पूरा दरवाज़ा लिटरली पूरा दरवाज़ा इतने ज़ोर से हिलने लगा, मतलब मैं सच में डर गई। और उसके बाद मैं अभी भी मैं गैलरी में जाती हूँ तो मैं किसी को साथ लेके जाती हूँ, मेरे को नहीं जाना अकेला भाई। मैं तो मतलब लाइक बहुत ऐसे ही है। मैं तो उस वक्त सच में फट गई थी। अब देख मैं उतनी भी डरती नहीं, बट पर्टिकुलर उस स्टेडियम में मैं अभी भी लाइक गैलरी वगैरह में जाती हूँ कभी मैच देखने, या फिर मेरा मुझे कुछ काम होता है गैलरी में, तो कुछ मेरा टूर्नामेंट रहता है तो हमें गैलरी में जाकर लाइक कुछ सामान वगैरह रखना होता है, तो फिर भी मैं गैलरी हो या ग्रीन रो, फिर भी मैं किसी को साथ लेकर ही अंदर जाती हूँ। मुझे मेरा हिम्मत ही नहीं मेरी कि मैं अकेली जाऊँ अंदर। फिर यही बात है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस लाइक आप लोग को बहुत डरा दिया शायद मैंने, किसी को ज़्यादा हंसी भी आ गई शायद, बट हाँ चीज़ें हुई है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो हॉल वीडियो आने वाली है। तो ये मैंने जस्ट मतलब एक चीज़ शेयर करनी थी तो मैंने ऐसे ही बना दिया। इसमें मतलब लाइक कुछ मतलब एक्चुअली मेरा जो कंटेंट है फैशन, लाइफस्टाइल, फिटनेस, ये सब चीज़ों से अलग है, बट लाइक आप लोग मेरे फैमिली जैसे, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी एक छोटा सा एक्सपीरियंस। एंड इसलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, शो योर लव स्टोरी। बाय।